हाँ जी, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਨਸਰ ਇਹਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਦੀ ਸਕੀਮ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤੇ ਡਰੈਸਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਲਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਐਨਹਾਂਸਿੰਗ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨ ਦ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆਜ਼, ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ 2005 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹਾਈਵੇ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ NH1। NH1 ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ GT ਰੋਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਮਾਰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਾਂ GT ਰੋਡ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਗਏ ਇਹ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਨੰਬਰ ਫੇਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਨਾਰਥ ਟੂ ਸਾਊਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਔਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1 3 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? 2 4 6 ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਗਵਾੜੇ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ NH44 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? NH44 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ NH44। ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ NH15 ਹੈ। NH15 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? NH15 ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅਨਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ। ਸੋ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ NH44। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ NH44 ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਨੰਤਨਾਗ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨੀਚੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ NH44 ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਥੀਐਸਟ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ NH15 ਹੈ। How many services come under your right to service act? Now ਇਹ ਐਕਟ ਵੀ 2018 ਚ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। 2018 ਚ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ
एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट 2018 ਇਹ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਊਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2018। E-District project has been successfully implemented। E-District ਵੀ ਹੁਣ once again ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੌਕ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। Who among the following known as father of ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ? ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਫਾਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਮਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਆਰ ਦਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ। ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਅਪੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਅਪੁੱਲ ਯਾਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। Whom of the following became the first woman to win ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਾਹਿਤਯ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤ ਲੇਡੀ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੀ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਗਲਤ नहीं होने चाहिए। शुक्रिया। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल टू ज्ञानम। सो यहाँ पे हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, दैट इज which of the following is a bond through which Indian entitles can raise money from foreign market in rupees and not in foreign currency? सो तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे भैया? ऑप्शन ए है कोऑपरेट बॉन्ड, बी है मसाला बॉन्ड, सी है म्युनिसिपल बॉन्ड और डी है जीरो कूपन बॉन्ड। So the answer will be masala bond here. So option number B is the right answer. Okay. Now come to the next question. तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो बात करता है in the context of Indian economy, which of the following option correctly describe the composition of foreign exchange resources? तो foreign exchange resources हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस को देखें और ऑप्शन नंबर सी को देखें यहाँ पे, तो वी हैव SDRs, gold holding to the RBI and foreign currency. This will be the right answer, right? चलते हैं आगे। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जब भी दो कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं फॉर अ पीरियड ऑफ ईयर, ठीक है, तो भैया वहां पे ये टर्म यूज होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इन्वॉल्व विजिबल ट्रेड एज वेल एज, मतलब जो गुड्स का हम लोगों ने ट्रेड करके रखा है, इनविजिबल ट्रेड मतलब सर्विसेज का ट्रेड, ठीक है। डेप्ट, अगर किसी कंट्री ने किसी से क्या लेके रखा है, डेप्ट लेके रखा है, कर्जा लेके रखा है, ठीक है, तो ये तीनों इंक्लूड होते हैं यहाँ पे, तो द आंसर विल बी डी हियर, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक रिसेशन, which of the above action can be considered a part of fiscal stimulus
पैकेज। सो एक्शन क्या क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे, कटिंग ऑफ द टैक्स रेट्स, बिल्कुल टैक्स रेट्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि अभी लोगों को क्या हो, लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा रहे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, बिल्कुल गवर्नमेंट अगर लोगों पे पैसा ज्यादा खर्च करती है तो लोगों के पास यहाँ पे कुछ रिजर्व बच जाएगा। अबोलिशिंग द सब्सिडीज, देखो ऑलरेडी रिसेशन का टाइम है, अगर हम सब्सिडीज को अबोलिश कर देंगे तो लोगों को और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। सो यहाँ पे ये थर्ड एक्शन जो है ये नहीं यहाँ पे होगा। तो 1 एंड 2 यहाँ पे हमारे पास है, तो ऑप्शन में 1 एंड 2 है यहाँ पे ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में 1 एंड 2 हमारे पास दोनों हम देख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सही आंसर रहेगा इसका। चलो आगे चलते हैं। अब ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, ठीक है, तो भैया ये ना बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है कि जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो उसके साथ क्या आती है, इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है, इन्फ्लेशन। तो बी जो होगा वो सही जवाब यहाँ पे रहने वाला है। चलो ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कहता है डिस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है तो वो कौन सी होती है, ऑफ लोडिंग ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज टू द गवर्नमेंट, नो, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स, यस दिस विल बी द राइट आंसर, ऑफ लोडिंग ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स टू प्राइवेट कंपनीज, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, उसको किसी भी प्राइवेट एंटिटी को देते हैं, इट कैन बी इंडिविजुअल, इट कैन बी अ कंपनी, ठीक है, उसको प्राइवेट कंपनी को दे तो उसे हम क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। गवर्नमेंट कोई अपनी एंटिटी कुछ अपने शेयर्स क्या करती है जब बेच देती है तो उसे क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट। चलो जी, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज आर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ठीक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी सम फैक्ट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटी। तो अगर मैं फंडामेंटल ड्यूटी की बात करूं तो अनलाइक फंडामेंटल राइट्स ये कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं ऐड हुए थे, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम में ये नहीं थे, लेकिन विद टाइम हम देखते हैं कि एक कमेटी बनाई जाती है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, उसको एनालिसिस का काम दिया जाता है। यहाँ पे तर्क ऐसा रहता है कि भैया अगर एक सिटीजन है वो राइट्स को एंजॉय कर रहा है तो वे स्टेट के लिए, नेशन के लिए उसकी भी कुछ ड्यूटीज बनती है, ठीक है। तो वहां पे हम देखते हैं कि बहुत सारी ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो आती हैं निकल के, ठीक है, तो ड्यूटीज आती है और इन ड्यूटीज को फाइनली हम देखते हैं कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 1976 में ऐड कर लिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एज पार्ट नंबर 4th ए, और जो इसका आर्टिकल है जिसका डील करता है दैट इज 51A, ठीक है। तो ये ड्यूटीज एक सिटीजन की यहाँ पे ऐड हो जाती है, ठीक है। सो देयर आर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर नाउ, ठीक है, जिसमें हम देखते हैं कि 11 जो है वो बड़े बाद में ऐड होती है, ओरिजिनली 10 ही थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में देखा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते। Who was the first woman to become the prime minister of India? देखो फर्स्ट वुमेन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। थर्ड हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी थी, ये कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी। फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड नंबर पे कौन आता है, इंदिरा गांधी आती है, ठीक है। 1966 में इलेक्शन जीत के पहली बार ये यहाँ पे हम देखते हैं आ जाती है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। With the reference to the Constitution of India, consider the following statements, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हम लोगों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनको कंसीडर करना है, ठीक है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, या फिर हम कह सकते हैं लोअर हाउस को ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपर हाउस के लिए नहीं होते, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया cannot appoint any of the union minister not recommended by prime minister, yes, अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी भी यूनियन मिनिस्टर को अपॉइंट करना है तो वो अपॉइंटमेंट सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की किस पे, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो क्या करता है, या रिकमेंड करता है, प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पे ही उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली जो होगा ये सही जवाब यहाँ पे आ जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट के 3 पार्ट्स आते हैं। पहले हम देखते हैं, सबसे पहले आता है ये राजा जी, यहाँ पे प्रेसिडेंट, कौन आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। उसके बाद दोनों हाउसेज आते हैं हमारे पास, लोअर और अपर, दैट इज लोकसभा,
एंड राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा तीनों आते हैं। ऑल ऑफ दीज विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट हैज विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स? ही कैन डिसॉल्व लोकसभा, यस ही कैन डिसॉल्व लोकसभा, प्रेसिडेंट ये कह सकता है। प्रेसिडेंट कैन समन एंड प्रोग द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो भैया ये प्रोग कर सकता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एक सेशन के बाद, ये खत्म कर सकता है पार्लियामेंट को, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑल्सो प्रमोगुलेट ऑर्डिनेंस, बिल्कुल ऑर्डिनेंस बना सकता है अंडर आर्टिकल 123, ठीक है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करें तो ये सारे के सारे ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते। Advisory jurisdiction of Supreme Court falls under which of the following article of Indian Constitution? The article is 143, ठीक है। ये आर्टिकल 143 क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, उसको एक जुरिस्डिक्शन देता है कि भैया वो क्या कर सकती है, एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट को, बट इट इज अप टू प्रेसिडेंट दैट वेदर ही कैन टेक दैट एडवाइस और नॉट। चलो आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फोल्ड माउंटेन? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा को फोल्ड माउंटेन को देखें, तो जब भी हम देखते हैं कि दो हमारे पास प्लेट्स, ठीक है, इट कैन बी टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और अ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एंड ओशियनिक प्लेट, जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस की तरफ एक दूसरे की तरफ कन्वर्जेंट मूवमेंट करती हैं, उस कन्वर्जेंट मूवमेंट की वजह से वो आपस में क्या करती है, टकरा जाती हैं। जब वो टकरा जाएंगी, टकराने के बाद भी वो एक दूसरे की तरफ मूवमेंट जारी रखती हैं, उस वजह से हम देखते हैं कि उनमें क्या आ जाता है, फोल्ड आ जाता है, ऐसे फोल्ड आ जाता है, एक नीचे चलेगी दूसरी ऊपर चलेगी, ठीक है। उनमें क्या आ गया, फोल्ड आ गया, ठीक है। तो फोल्ड आ गया, या फिर हम कहते हैं हिंदी में, पंजाबी में तो वट आ गया, वल आ गया, ठीक है। तो हिंदी में इनको वलिद पर्वत श्रृंखलाएं भी कह देते हैं, और इंग्लिश में फोल्ड माउंटेन रेंजेस या फोल्ड माउंटेन भी इनको कह देते हैं, ठीक है। तो हमें बताना है यहाँ पे इनमें से कौन सा फोल्ड माउंटेन नहीं है। तो हिमालय है, हमें पता है दो यहाँ पे इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, तो क्या बन गया यहाँ पे, हिमालयाज हमारे पास बन जाता है। यहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराई थी, तो हिमालयाज बन जाते हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स है। रॉकीज की बात करूं तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में दिख जाएगा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है जब वो पैसिफिक ओशन प्लेट के साथ टकराते हैं तो आपके पास रॉकीज बन जाते हैं। एंडीज ऐसे ही आप लोगों को नीचे मिल जाएंगे साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिकन प्लेट जब पैसिफिक की प्लेट के साथ टकराती है तो आपको एंडीज मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे माउंट किलिमंजारो जो है कि वोल्केनिक माउंटेन है, ये वोल्केनिक माउंटेन है, ठीक है। तो मतलब ये वोल्केनिक माउंटेन है, ये कैसा माउंटेन नहीं हुआ, फोल्ड माउंटेन नहीं हुआ, ठीक है। माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड के फर्दर ओल्ड फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड या फिर यंग फोल्ड माउंटेन्स, या फिर हम देखते हैं आगे देखिए तो ब्लॉक माउंटेन्स आ जाए हमारे पास, रेसिडुअल माउंटेन्स आ जाते हैं हमारे पास, वोल्केनिक माउंटेन्स आ जाते हैं। तो वो माउंटेन्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं में से हम देखते हैं वोल्केनिक टाइप का माउंटेन है माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक है। तो यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, बाकी तीनों क्या है, फोल्ड माउंटेन्स। चलो आगे चलते हैं। Which of the following landform occupy ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ द अर्थ? मतलब धरती पे सबसे ज्यादा हिस्सा, धरती का सबसे ज्यादा हिस्सा इनमें से कौन सा लैंड फॉर्म कवर करता है, ठीक है। तो अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं, प्लेटूज की बात करूं, देखो वोल्केनोस तो बिल्कुल कम है, ठीक है। और अगर मैं माउंटेन्स की बात करूं तो वो भी बहुत कम है, प्लेटू सिग्निफिकेंट है लेकिन कम है। सबसे ज्यादा क्या है, प्लेन्स, सबसे ज्यादा हिस्सा क्या कवर करता है, प्लेन, ठीक है। प्लेन मतलब एरिया जिसमें हम देखते हैं स्लोप नहीं होता है, कि इस तरीके का प्लेन एरिया रहता है, इसमें कोई भी आप लोगों को स्लोप नहीं देखने को मिलेगा। अगर प्लेटू की बात करूं तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा हाईलैंड आ जाता है, टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसका फ्लैट सा सरफेस होता है। माउंटेन की बात करूं तो माउंटेन में हमेशा पीक रहती है और स्लोप सरफेस रहता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो सरफेस एरिया कम होता जाता है। वोल्केनो की बात करें तो वोल्केनो एक ऐसा एरिया होता है जहां से हम लोग देखते हैं मैग्मा बाहर आता है और लावा बन जाता है, बाद में वो लावा जम जाता है, ठीक है। जब वो लावा जम जाता है या तो प्लेटो बनाएगा या माउंटेन बनाएगा, ठीक है। चलो जी, तो ये हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ए यहाँ पे आंसर रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर? कहता है ओशियन वाटर के मूवमेंट पे किसका इफेक्ट नहीं होता, अगर होता भी तो कम होता है। सन का बिल्कुल होता है, सन की ग्रेविटी की वजह से हम देखते हैं टाइड्स की फॉर्मेशन होती है। टाइड्स की फॉर्मेशन होगी तो भैया टाइड्स में क्या होता है, जो ओशन का वाटर है वो मूव करता है ना, ठीक है, अप एंड डाउन, ठीक है,
वर्टिकल मूवमेंट करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं तो ये सन का और मून का जो रोल रहता है, और द मून इज नॉट इन द ऑप्शन, तो सन का यहाँ पे रोल रहता है। टेम्परेचर का, बिल्कुल टेम्परेचर की वजह से हम देखते हैं कन्वेक्शनल करंट्स जो होते हैं ओशियन में वो चलते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे करंट्स आते हैं, लैब्राडोर आ गया या फिर बहुत सारे कैनरी करंट आ गए, बहुत सारे करंट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो विंड्स का, बिल्कुल विंड्स जैसे अगर मान लो दिस इज सरफेस ऑफ द ओशन, इसके ऊपर से अगर हवाएं बह रही हैं तो अपने साथ ये पानी को भी उठा लेती है और यहाँ पे वेव्स बन जाती हैं, ठीक है। तो भैया यहाँ पे वेव्स भी तो मोमेंट है ओशन के वाटर की। बात करते हैं रिवर्स की, जब रिवर्स अपने पानी को क्या करती है, छोड़ती है ओशंस में या फिर बड़ी वाटर बॉडीज में, तो इनसिग्निफिकेंट सा हम देखते हैं फर्क रहता है। तो अगर इसका क्वेश्चन के कंट्रास्ट में देखें तो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। The game of snakes and ladders, originally called Mokshapath, was created by which of the following person? तो ये भैया ज्ञानदेव ने, हम देखते हैं कि ये इसकी डिस्कवरी करी थी, ठीक है। ज्ञानदेव, किसने? ज्ञानदेव ने, ठीक है। चलो आगे आते हैं। Which of the following is first to get rainfall from Indian monsoon? ठीक है। इंडियन मानसून जो होता है, if I talk about Indian monsoon, if this is India, तो इंडियन मानसून जो होता है सबसे पहले हम देखते हैं साउथ ईस्ट मानसून आता है, यूं देखो यूं मानसून हम देखते हैं आता है। तो जब यूं आ रहा है तो सबसे पहले इसके रास्ते में यहाँ पे आते हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। जब इसके रास्ते में वेस्टर्न घाट्स आए तो वेस्टर्न घाट से टकराएगा ये मानसून और यहाँ पे बारिश होगी। तो सबसे पहले बारिश कहाँ पे होती है? वेस्टर्न घाट के रीजन में, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मानसून इन इंडिया? मानसून मीन्स whenever there is a rainfall, देखो रेनफॉल के बड़े सारे टाइप्स होते हैं, तो हर कोई बारिश मानसून नहीं होती है, ठीक है। तो द आंसर विल बी मानसून रेफर टू द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम अक्रॉस द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दिस विल बी द राइट आंसर। कि भैया मानसून क्या होता है? सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, ठीक है। विंड्स जो होती हैं सीजन की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर का फैक्टर हो गया, प्रेशर का फैक्टर हो गया, जिसकी वजह से कुछ विंड्स जो होती हैं, हम देखते हैं समंदर के ऊपर से, इंडियन ओशन के ऊपर से जो विंड्स हैं वो क्या करती है, अरेबियन सी से इंडियन प्लेटो जो इंडियन पेनिसुला की तरफ बहने लगती है और आगे की तरफ बहने लगती है। जब वो अरेबियन ओशन से आ रही होती है अपने साथ नमी भी ले आती है और उस नमी को बरसा देती है, ठीक है। और ये सीजनल ही होता है और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो भैया यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलो, हाउ मच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन अडल्ट ह्यूमन ओवर 24 आवर? एक दिन में 24 घंटे में एक इंसान जो होता है वो कितना यूरिन जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है? तो भैया 1.5 लीटर जो है वो यूरिन 1.5 लीटर तक यूरिन को क्या करता है? प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब 1.5 लीटर यूरिन को प्रोड्यूस कर सकता है। चलो, नेम द एसिड विच इज सिक्रेटेड इन द स्टमक। पेट के अंदर कौन सा एसिड होता है? ठीक है, ये बड़ा फेमस एक एसिड है, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब ये क्या करता है कि डाइजेशन में, ठीक है, जो हम लोग चीजें खाते हैं ना, फूड की इनटेक करते हैं ना, उस फूड के ब्रेक डाउन में ये मदद करता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। चलो आगे आते हैं। नेम द हार्मोन विच कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सा हमारे पास यहाँ पे? एल्डोस्टेरोन, ठीक है। ये हम देखते हैं कि एड्रेनल ग्लैंड से ही हम देखते हैं ये सिक्रेट होता है और ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में, कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। चलो, आर्टिफिशियल जीन वॉज क्रिएटेड बाय। आर्टिफिशियल जीन को क्रिएट करने के लिए एक इंसान बहुत ही ज्यादा न्यूज में था, इंडियन ओरिजिन का था, आज से कुछ साल पहले, जिसका नाम क्या था? हरगोविंद सिंह खुराना या हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द केमिकल एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज प्रपोज्ड बाय। देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ वाज गिवन बाय डार्विन, तो लोगों को लगता है डार्विन, but the question is chemical evolution of life was proposed by। तो ये भैया हम देखते हैं यहाँ पे ये दो लोग थे, एक तो आपके पास कौन सा था? ओपरेन, ठीक है, और ओपरेन के साथ देयर वाज अनदर पर्सन, ठीक है, जो आपके पास कौन सा था? जेबीएस हल्द्वानी, जेबीएस हल्द्वानी, ठीक है। एक तो एआई ओपरेन और दूसरा कौन? जेबीएस हल्द्वानी, ये दो लोग थे, ठीक है, जिन्होंने थ्योरी डेवलप करी थी। यहाँ पे डार्विन नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलो आगे चलते हैं। ओके,
इंटू जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ, देखो बहुत सारे एटमोलॉजी के साथ इसको कंफ्यूज कर लेते हैं, ठीक है। एटमोलॉजी जो कि स्टडी किसकी होती है, इंसेक्ट्स की, तो एटमोलॉजी नहीं है, ये क्या है, इंटोजोलॉजी। इंटोजोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासाइट्स दैट लिव इनसाइड द लार्जर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वे परजीवी, ठीक है, जो दूसरे जानवरों पे रहते हैं। फॉर एग्जांपल जू हो गया, पिस्सू हो गया, वो दूसरे जानवरों पे क्या करते हैं, उन पे रहते हैं, ठीक है। कुछ एक परजीवी ऐसे भी होते हैं जो अपने जिस होस्ट पे वो गुजारा कर रहे हैं उसका भी फायदा करवाते हैं ना, तो उनको कहते हैं कि भैया सिम्बियोसिस, दोनों के बीच में एक सिम्बियोटिक रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे का फायदा, हम देखते हैं यहाँ पे एक दूसरे को फायदा देते हैं, ठीक है। चलो, लेकिन ये सिम्बियोसिस वाले नहीं है, यहाँ पे पैरासाइट्स की बात करी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट की, सारे पैरासाइट सिम्बियोसिस नहीं करते, ठीक है। सिम्बियोसिस का मतलब एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, जो एक पैरासाइट्स और होस्ट, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैनिज्म इन एंशियंट इंडिया कंडेमन द वर्ण सिस्टम, तो भैया जैनिज्म ने अगर बात करें तो वर्ण सिस्टम को कंडेम नहीं करा था, इट वाज बुद्धिज्म जिसने इसको कंडेम करा था वर्ण सिस्टम को। वहां पे देखते हैं कि महावीर जैना का मानना था कि भैया जो ये वर्ण सिस्टम है ना, ये कर्म ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी, कह सकते हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं कि मोनार्कियल या मतलब जिस फैमिली वाइज नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैन रिलीजियस लिटरेचर वाज रिटन इन अर्धमगधी, यस दे वर रिटन इन अर्धमगधी, राइट, ठीक है। महावीरा एडमिटेड वुमेन्स इनटू द ऑर्डर ऑफ हिज फॉलोअर्स, यस महावीरा ने वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया था जैनिज्म में, तो 2 and 3 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हियर इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग आ गया, तो यहाँ पे चलो देखते हैं मैच द फॉलोइंग थोड़ा यहाँ पे। चलो सबसे पहले बात करते हैं ऋग्वेदा, ठीक है। तो ऋग्वेदा में हम बात करते हैं तो यहाँ पे है, देखो ये साथ साथ में हो गया, बट दिस इज हाइमन्स, ठीक है, मतलब श्लोक वगैरह जो हो गए, ठीक है, एंड प्रेयर्स, ठीक है, ये प्रेयर्स अलग है। तो ऋग्वेदा में हाइमन्स और प्रेयर्स है ना, हमने देखा ही था, प्रेयर्स जैसे गायत्री मंत्र हो गया थर्ड मंडल में, ठीक है, ऋग्वेदा में, ठीक है। उसके बाद शाम वेदा की बात करें तो शाम वेदा में क्या है हमारे पास, म्यूजिकल हाइमन्स, क्या है, म्यूजिकल हाइमन्स, हमने देखा था द्रुपदा वेदा में लिखा पूरा, इसमें सॉरी द्रुपदा रागा में पूरा का पूरा ये हम लोगों को मिल जाता है। शाम वेदा में म्यूजिक और बाकी चीजों को भी हम लोगों को क्या मिल जाता है, यहाँ पे डिटेल मिल जाता है, ठीक है। ज्यादातर चीजें हालांकि ऋग्वेदा से ली गई हैं, 99 ही ओरिजिनल हाइमन्स है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पे ये पता चलता है कि म्यूजिक के लिए ज्यादा फेमस है शाम वेदा। यजुर्वेदा की बात करें तो यजुर्वेदा में यहाँ पे हम बात करें हाइमन्स एंड रिचुअल्स, ये अलग अलग है, हाइमन्स अलग है, ये एंड बीच है, और ये रिचुअल्स है, ठीक है। हाइमन्स एंड रिचुअल, यजुर्वेदा में क्या था भैया, हाइमन्स एंड रिचुअल्स, रिचुअलिस्टिक सोसाइटी हो गई थी यजुर्वेदा के टाइम पे। और अथर्ववेदा के टाइम पे क्या हो गया था, यहाँ पे है चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, जादू टोने वाली, ठीक है, चार्म्स एंड स्पेल्स। यहाँ पे सही ऑर्डर रहेगा, ए का आपके पास आ गया 4, बी का आपके पास आएगा 2, सी का आपके पास क्या पे क्या आया है, सी का आया है 1, और अथर्ववेदा का मतलब डी का आपके पास क्या आया है 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ए जो है आपका यहाँ पे सही जवाब रहने वाला है। चलो आगे चलते हैं। यूज ऑफ प्लो हैज बीन एविडेंट एट, तो भैया प्लो मतलब हल का इस्तेमाल कहाँ पे, कालीबंगा में। कालीबंगन में हम लोगों को प्लोड फील्ड्स मिलती हैं, ये कालीबंगन है कहाँ पे, तो राजस्थान में है। इस साइड का नाम कालीबंगन लिटरली इसलिए पड़ता है कि जब खुदाई होती है तो यहाँ पे ब्लैक बैंगल्स के एविडेंस हम लोगों को मिलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन इंडिया वाज, ब्रिटिशर्स के खिलाफ हम देखते हैं कि भैया पहला मूवमेंट तो ये हम देखते हैं 40s में 1942 में आया भैया क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट हम देखते हैं कि ये हम देखते हैं 1920 में हम लोगों को मिलता है, ठीक है। और स्वदेशी मूवमेंट है 1905 1906 में ज्यादा जोर पे होता है, तो सबसे पहले कौन सा आया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट विल बी द राइट आंसर हियर। चलो आगे चलते हैं। Who was known as the plateau of Jat tribe, तो भैया यहाँ पे सूरजमल इज द राइट आंसर, सूरजमल को प्लेटो ऑफ जाट ट्राइब के नाम से भी हम देखते हैं जाना जाता है, ठीक है। चलो द क्रक्स ऑफ अर्ली बुद्धिज्म, ठीक है, अर्ली बुद्धिज्म जो था वो ज्यादा कुछ नहीं था, बुद्धा की जो बातें थी, ठीक है, बुद्धा गौतम बुद्धा की जो ये बातें थी, जो उनकी फिलोसफी थी उसी के ओरिएंटेड घूमता था। और भैया उनके अकॉर्डिंग क्या था कि भैया सबम दुखम द्वादश निदानम,
ठीक है, उनका मानना था कि सबम दुखरुम, ठीक है, डिजायर्स, ठीक है, एवरी डिजायर, सोरो कम्स विद डिजायर्स, ये सोरो इज ऑल बिकॉज ऑफ डिजायर्स, ठीक है। तो वो कहता है कि भाई अगर डिजायर्स को छोड़ दे हम लोग तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे एनलाइटमेंट हो जाएगी, सारे दुखों से हम लोग क्या हो जाएंगे, तो छूट जाएंगे। तो यहाँ पे रेन्यूकेशन ऑफ डिजायर्स, द्वादश निदानम, ठीक है। दिस वाज इट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलो, RailTel launched which scheme on May 9 to provide access to its public Wi-Fi service across 100 railway station in India? The right answer will be PM Wani. PM Wani will be the right answer here. ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, legendary musician, passed away on May 10th in Mumbai. He was associated with which of the musical instrument? तो आप लोगों ने इनको बहुत बार देखा होगा, ठीक है, ये संतूर बजाते थे, ठीक है, और बहुत बार ये क्या करते थे, जाकिर हुसैन के साथ भी, जाकिर हुसैन तबला बजा रहे हैं, ये भी तबला बजा लेते थे हालांकि, लेकिन ज्यादातर इनको आपने संतूर के साथ देखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इनको बड़ी बार यहाँ पे देखा होगा साथ में जैमिंग करते हुए, ठीक है, तो ये संतूर से रिलेटेड थे। चलो जी, India's first semi-high-speed regional rapid transit system RRTS is to be started on which of the following? तो ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच में, मतलब दिल्ली और मेरठ के बीच में शुरू हो रहा है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर है। चलो जी, Dash become the first state in India to surpass 10 gigabyte of cumulative large-scale solar installation। तो सबसे ज्यादा सोलार इंस्टॉलेशन जो इंडिया में है वो किस में है, राजस्थान में। कहाँ पे, राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में बहुत अच्छी धूप आती है, ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी का बहुत ज्यादा स्कोप है, ठीक है। तो राजस्थान विल बी द राइट आंसर है। ओके, रोडगियो caves has been sworn in the new president of Costa Rica, ठीक है, have been sworn as the new president of Costa Rica। Give me a second। New president of Costa Rica, it is located in which of the following part? So it is in Central South America, Central South America, okay। So option number A will be the right answer। Okay, just give me a second। It is Central America, Central America is also there in options, so the answer will be Central America। चलो आगे चलते हैं। The 15th session of the Conference of the Parties, that is COP15 of the UNCCD, that is United Nations Convention to Combat Desertification, has been held on May 9 to 20 at which place? So it was in अडिबजान, और ये कहाँ पे है, अगर बात करो इसके में तो आइवरी कोस्ट के एक कंट्री, वहां पे हम देखते हैं अडिबजान में ये सेशन होता है, ठीक है। सो ये थे आज के जीके क्वेश्चन। आई होप तुम लोगों को काफी हेल्पफुल रहे होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म करते हैं ये सेशन, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, आज आप डिस्कस करने जा रहे हैं मॉक टेस्ट ਨੂੰ कि किवें ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਮਿਰਰ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਿਰਰ ਰੱਖਤਾ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਮਿਰਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। हाँ जी, ए तो नहीं मिलूगा, इधर वाली साइड चला जाऊंगा, क्योंकि जो चीज ए तो बी है मिरर च देखने तो बाद वो बी तो ए हो चुकी है ना। ये लंबे वाला हैंड मतलब मिनट हैंड जो है वो इस साइड आना चाहिए। देखो इधर भी छोटे वाला हैंड है, ये वाला था, फिगर ही गलत होगी, कि आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो अगला की है, नंबर ऑफ लेटर्स kept in between adjacent letter in the series are multiples of 9, sorry multiple of 3। देखो जी जे ਆਪਾਂ ए ऑप्शन ਚੱਕਦੇ ए तो बाद की आया ई, विच की आ गया बी सी डी, मतलब 3 का मल्टीपल हो गया। उस तो बाद एल की होगा एफ जी एच आई जे के, 1 2 3 4 5 6,
ठीक है जी। नेक्स्ट इज पी, एल तो बाद एम एन ओ, पी, ठीक है जी। अगे सी, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मल्टीपल की है 3 का, आंसर इज ए ऑप्शन। हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, पेपर, PAPER is written as SCTGW, 16 19 plus 3, 1 3 plus 2, 16 20 plus 4, 5 7 plus 2, 18 23। हाँ जी, 18 तो बाद कितना आया, +5। देखो की हो रहा है, +3 +4 +5, 2 की रहा अपना स्टैटिक, ठीक है जी। अपन की क्या, मदर, किवें करोगे, +3 +2 +4 +2 +5 +2, 13 14 15 16 P, 15 Q, 20 24 है ना X, 8 10 that is G, PQ XG, ठीक है जी, क्लियर। 5 ठीक जी। नेक्स्ट, हाँ जी, आप इतने की फिल करिए, देखो ये दोनों का सम मिला के सेंटर वाली वैल्यू आ रही है, मतलब ये दोनों का सम मिला के सेंटर वाली वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज 7, है ना। आगे देखो, EGIK is written as WUSQ, की हो रहा है, E the opposite letter is D +1, G the opposite letter T +1, I the R +1, K the P +1, ठीक है। नेक्स्ट देखो, D W +1 UVW X, U sorry F the U +1 V, H S T, है ना, S T की आएगा, आंसर इज D। नेक्स्ट इज, हाँ जी, यू गो नॉर्थ, ठीक है, उस तो बाद टर्न राइट राइट एंड देन लेफ्ट, राइट दे नाल लेफ्ट गया, की बचा सिर्फ राइट, हुन अपना फेस किस डायरेक्शन विच है, दैट इज ईस्ट, ठीक है जी। हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप, क्वेश्चन किसको शुरू हो रहा है, शी तो। सब तो पहला मैंने कहा की क्या, मेरी डॉटर इन लॉ दी मदर इन लॉ, मैन दी डॉटर इन लॉ कौन हो, मैन दी डॉटर इन लॉ, मैन दे बेटे वाइफ, ठीक है। दी डॉटर इन लॉ दी मदर इन लॉ, मतलब मैन दे बेटे दी वाइफ, डॉटर इन लॉ दी मदर इन लॉ इज दी मदर इन लॉ, मतलब मैन दी वाइफ, ठीक है। मैन दी वाइफ दा बेटा, मैन दी वाइफ दा बेटा, यही हो गया। बेटे दी ग्रैंड मदर, ग्रैंड मतलब मैन दी मदर, इथे आके क्वेश्चन खत्म हो गया, ए शी,
ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੂਮਨ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੂਮਨ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰਸਨ, ਕੀ ਕੋ ਮਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਖਾਣੇ ਹੈ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਰ ਸੈਟਰਡੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕੋ। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका पंजाब मॉक है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन, मैथ के पार्ट का सॉल्यूशन हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। 3 science classes A, B and C take a life science test. The average score of student of class A is 83. क्लास A के स्टूडेंट का जो एवरेज स्कोर है वो आपका क्या है, 83 है। वो आपका क्या है, 83। ठीक है, और उसके बाद द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B इज 76 और क्लास B का जो क्या है 76 है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास C इज 85 और क्लास C का जो एवरेज स्कोर है वो क्या है, 85 है। The average score of class A and B is 79. अब देखो A और B का जब कंबाइंड किया जाता है तो 79 है और B और C का जब कंबाइंड किया जाता है तो 81 है। इसमें हम लगाएंगे एलिगेशन, पहले A और B के लिए फिर B और C के लिए। देखो 79 माइनस 76 3 और 83 माइनस 79 4, 85 माइनस 81 4 और ये आ जाएगा आपका 81 माइनस 76 5। मतलब ए बी सी में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है वो आपका 3:4:5 है। ठीक है, तो टोटल क्या बनेगा, देखो 83 इंटू 3 के क्लास ए का सम ये बन जाएगा 9, 8 इंटू 3 24, क्लास बी का सम क्या होगा 76 इंटू 4। देखो इनको आप मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, आप या तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लो क्योंकि सिंगल डिजिट का नंबर है, या आप इसको ये समझो कि 75 इंटू 4 300 और ये कितना बन जाएगा, फिर 304 बन जाएगा। उसके बाद 85 इंटू 5, 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुना 5 40, 400 और 425। तो देखो टोटल कितना बना 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, कैरी 1 होगा, ये आ जाएगा 7, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। तो 978 डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है 12। पहले तो 8 पे डिवाइड करेगा फिर 1 पे डिवाइड करेगा, मतलब 81 पॉइंट समथिंग 81 पॉइंट समथिंग, तो 81 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। और कुछ जगह इस क्वेश्चन का आंसर है ना 80.5 भी दे रखा है जो कि गलत है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा 81.5 बनेगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Suresh got married 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of marriage. देखो उसकी शादी कब हुई थी, 8 साल पहले हुई थी। अब उसकी शादी के टाइम की एज और आज की एज का रेशियो क्या है 5:6, तो मतलब डिफरेंस कितने का 1 का, 1 कितने के इक्वल 8 के इक्वल। तो शादी के टाइम उसकी जो एज है वो 40 इयर्स की है, शादी के टाइम वो कितने का 40 साल का है। His marriage, Suresh sister was 10 years younger than to him at the time of marriage. उसकी बहन उससे 10 साल छोटी है तो वो 30 साल की होगी। The present age of the Suresh sister, तो अब 8 साल बाद उसकी बहन की एज क्या हो जाएगी 38। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, सुशील gave 40% of a certain amount of money to Rajesh and Rajesh spent 20% on buying books and 35% on buying a mobile। देखो उसने 20% और 35% मतलब टोटल कितना खर्च कर दिया 55% खर्च कर दिया, उसके पास बचा कितना है 45% बचा हुआ है। मतलब जो ये अमाउंट है ठीक है ये आपका सिर्फ 40% है, सॉरी 45% बचा हुआ है। ठीक है, और जो ये अमाउंट है अगर मैं इसको इंटू 100 कर दूं तो ये 100% आ जाएगा, और ये एक्चुअल में सिर्फ 40% था जो आप सुशील ने राजेश को दिया था। यहां से इसको सोल्व करेंगे तो आपकी 100% की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले तो अगर इसको 20 से डिवाइड कर दें तो ये 2/5 आ जाएगा, 5 इसको 9 पे डिवाइड कर देगा, 2 से इसको डिवाइड करो ये 50 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से इसको डिवाइड करें
पहले 2 पे डिवाइड करेगा, 9 इंटू 2 18, फिर 38, 9 इंटू 4 36, और फिर आपका दोबारा ये 36 22, फिर 2 पे डिवाइड होगा, फिर 5 पे, और 24 गुना 5 120, मतलब लगभग ऑप्शन ए आपका इसका क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं, शॉपकीपर परचेज 30 kg ऑफ राइस, कि उसने 30 kg राइस खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 40 रुपीज पर केजी। ही सोल्ड 40% ऑफ द टोटल क्वांटिटी, मतलब 30 का 40%, मतलब उसने 12 kg सेल कर दिया एट द रेट ऑफ 50 रुपीज पर केजी, मतलब 12 गुना 5, 12 पंजे 60 होता है, तो मतलब उसने 600 रुपए के बेच दिए। एट व्हाट प्राइस पर केजी शुड ही सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी। देखो टोटल 30 किलो था, तो बचा कितना हुआ है आपका, 18 किलो अभी भी बचा हुआ है। पर केजी ही शुड सेल द रिमेनिंग क्वांटिटी टू मेक 25% ऑन ओवरऑल। देखो उसने 30 केजी लिया था 40 के हिसाब से, तो मतलब उसने टोटल 1200 का लिया था, ठीक है। अब वो चाहता है 25% प्रॉफिट, मतलब इसको 5/4 पे सेल करना चाहता है, तो मतलब वो टोटल 1500 में सेल करना चाहता है। कितने में, 1500 में सेल करना चाहता है। तो 900 ऑलरेडी, 600 ऑलरेडी सेल कर चुका, तो बचा हुआ 900। तो देखो, तो ये भी आपका प्राइस क्या आएगा, 50 रुपीज पर केजी ही आएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है आपके। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, आयुष डिवाइडेड 2189 इन 3 पार्ट्स सच दैट द इंटरेस्ट ऑन them after 1, 2 and 3 years respectively may be equal the rate of SI। सिंपल इंटरेस्ट है इस 4% पर एनम। देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका R इंटू टी परसेंट ऑफ टी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, R इंटू टी परसेंट ऑफ टी, सॉरी R इंटू टी परसेंट ऑफ P होता है। R इंटू टी परसेंट ऑफ P प्रिंसिपल के ऊपर होगा। देखो ये तो सब में सेम है, तो पहले के लिए A के लिए लगा 1 साल के लिए, B के लिए 2 साल और C के लिए 3 साल, क्योंकि टाइम तो इक्वल है, वो तो सबसे कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं यहां से A, B और C का रेशियो कैलकुलेट करता हूं, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और 2, कि A, B और C का टोटल जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, तो स्मॉलेस्ट पार्ट उसने पूछा था, मतलब C की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो टोटल 11 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, 2189। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करें, पहले इसको डिवाइड करेगा 1 पे, ठीक है, उसके बाद 88 और फिर 9 पे 189, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 189 इंटू 2 380, 398, 398 एक सेकंड, 99 पे डिवाइड करेगा, 199 पे डिवाइड करेगा, ये 199 पे डिवाइड करेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 398 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पहले 8 पे नहीं 9 पे डिवाइड करेगा। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। राकेश एंड एंजल वर्किंग ऑन एन असाइनमेंट, रोनाल्ड टेक्स, यहाँ पे रोनाल्ड आएगा शायद, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है इस क्वेश्चन में। रोनाल्ड टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 36 पेज, तो 1 आवर में कितने पेज टाइप करेगा, 36 डिवाइड बाय 6, तो 2 से डिवाइड करेंगे, या 6 पे ही डिवाइड हो रहे हैं, तो सीधा सीधा ठीक है 6 पे डिवाइड हो रहा है, 36 और 6 है ना, हाँ, तो 1 में कितना करेगा ये 36 डिवाइड बाय 6, तो 6, और सेकंड वाला करता है 1 आवर में 25 बाय 5, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई 11, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो गई 11, 110 पेज करने हैं, तो 110 बटा 11 10 घंटे में कर देगा। कितने में कर देगा, 10 में कर देगा। तो ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, विदाउट पेन पेपर होने वाले क्वेश्चन है ये सारे। A dog takes 3 leaves for every 3 5। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में ना बहुत बच्चों को परेशानी रहती है, मैं कहता हूं कुछ मत करो, इस 3 लिखो, ये एज इट इज 5 लिख लो, ठीक है। उसके बाद 1 लीप ऑफ द डॉग इज इक्वल टू 3 लीप, 1 और 3 लिखो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 9 और 1 इंटू 5 5, तो 9 रेशियो 5 आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं आपको कभी भी। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, two persons A and B invest in a business with capitals 5,000, 6,000 and
After 3 months, both A and B invest 5,000 more. After 3 more months, C joined the business with a capital of 10,000 rupees. The share of B exceeds C by how much if the total profit is 47,000? देखो क्या कह रहा है, A, B और C तीन लोग हैं. तो सबसे पहले A ने बिजनेस शुरू किया, 5,000 रुपए लगाए. B ने बिजनेस शुरू किया, 6,000 रुपए लगाए. ठीक है, बट ये जो पैसा है ना, ये सिर्फ उनका कितने दिन के लिए चला? 3 मंथ्स के लिए चला. ये सिर्फ 3 मंथ्स के लिए चला और उसके बाद दोनों ने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया. इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को 5,000 से बढ़ाया तो 10,000 हो गई अगले 9 महीनों के लिए. इसने 5,000 बढ़ा दिए तो इसकी इन्वेस्टमेंट 11,000 हो गई अगले 9 महीनों के लिए. एंड आफ्टर 3 मोर मंथ सी ज्वाइन, और उसके बाद सी भी आ गया 10,000 के साथ, और इसने कितने महीने के लिए लगाया? 6 महीने के लिए. देखो ये 90 और 15 तो 1,05,000 रुपए हो गए ए के लिए. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 11 गुना 9 99 और 18 107. ठीक है, सॉरी 99 और 18 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 117 हो जाएगा आपका. और ये कितना था? 60,000. चलो जी, ये तो हमारे पास तीनों का रेशियो अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर सॉल्व करेंगे, देखो 30 से 30 कैंसिल हो रही है. उसके बाद अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो इसको 35 पे डिवाइड करेगा. ठीक है, इसको पहले 3 पे और फिर 9 पे, 39 पे डिवाइड करेगा, और इसको 20 पे. 35 प्लस 39 प्लस 20, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो 94 यूनिट है, जो कि 47,000 के इक्वल है. 47,000. तो 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करो. साफ साफ नजर आ रहा है कि ये 500 पे डिवाइड हो जाएगा. तो उसने पूछा था कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है. बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है? 19 है. 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 9500. ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा. बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था. ऑप्शन सी आपका क्या हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर. चलिए जी, ये आपका मैथ का सेक्शन था. बहुत इजी क्वेश्चन थे. और अगर हम बात करें आपके एग्जाम के लिए, तो इसमें हमेशा इजी क्वेश्चन ही बनते हैं, बस लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा सा आपको काम करने की जरूरत है. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए टेक केयर. थैंक यू सो मच. Hello everybody, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. So guys, we are to the English section of this mock. Let us try. आगे क्या? There is a bridge dash the river. River के ऊपर bridge है, that is called over. There is a bridge over the river. So the answer to this question comes out to be A. Followed by Please make yourself dash home. अपने आप को कंफर्ट में रखो is called please make yourself at home. Followed by the sentences have been given in active passive voice. आपको change करना है. The storm did much damage is past indefinite. ये कहां जाएगा past indefinite? ये जाएगा of course was were लेकर. तो देखो ये रहा was, ये वाला काट दीजिए, no was, ये रहा was. अब देखो was done हो जाएगा क्योंकि did का फॉर्म बनेगा, तो आंसर इज ए. Much damage was done by the storm. Followed by is why haven't they allowed you to go? फिर से आपको कन्वर्ट करना है. Why haven't they? This is present perfect, तो been चाहिए. Why you haven't been allowed चलेगा. Why haven't you been allowed चलेगा. ये वर्ड काट दो, ये वर्ड काट दो. अब देखो जरा, सिंस ये क्वेश्चन मार्क है तो have not आपको पहले चाहिए. Why have not you been allowed to go? Why have not you been allowed to go? The answer is B, boy. अब क्या है? Identify the misspelled word आपको बताना है. The misspelled quotation सही है, depth सही है, facade सही है, persuasive. Next, identify the misspelled word. अब देखो आपके पास एक 4 words का वो आया है, right? अब देखिए जरा, demeanor, deodorize. Demonstrator is wrong, of course. Answer is C. Followed by direct indirect आपके पास आया है, आपको direct indirect change करना है. How cruel the boss is, said the clerk. Exclamation mark आया है, तो देखिए जरा, exclaimed आना चाहिए. Exclaimed that. The boss is या was? The boss was very cruel. पहले वाले दोनों काट दे because exclaimed नहीं आया, तीसरे वाला काटा because is लगा है. When you have started your sentence with past tense, तो अंदर भी past चाहिए ना, तो boss was very cruel.
Yani answer to that question is C. I forgot to mark over here. Like, followed by the next question says, what is it? In each of the following questions, out of the four alternatives, choose the one which can be substituted of the given words. Simplest stand, smallest form of plant, present in air and water and soil, essential to life but many cause disease. क्या है? Bacteria. Followed by one more substitution. It says relationship by blood or birth is called parentage, affiliation, consanguinity या nepotism. तो आंसर क्या हो जाएगा? Consanguinity. Next is what is it? Idioms and phrases करने हैं आपको शायद. All four orders you are required to choose the correct meaning of the idioms given in italics. Italics तो दिख नहीं रहा है, मैं मार्क कर देता हूँ आपके लिए. Little elbow, room, ये है. So देखिए little elbow room, room elbow space freedom ground. आपको क्या चाहिए? जब भी little elbow room की आती है, you need, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, like I am freely moving my hands is called freedom. Followed by idioms आगे फिर से आपको italics में दिए गए हैं, आपको convert करने हैं. Says the members of the group were tods over the selection procedure. Tods over का मतलब क्या होता है? जो ग्रुप के मेंबर्स थे बड़े टॉड्स ओवर थे, मतलब आपस में लड़ी जा रहे थे, मतलब इन डिस्प्यूट. The communal politics has done imponderable loss to the unity of India. Choose the word nearest meaning to bold part. Is called imponderable. को देखना आपको. Imponderable का मतलब होता है जिसको हम कैलकुलेट भी ना कर सके. Incalculable. Followed by India has not yet been able to harness her domestic resources in full. देखिए आपको क्या बता रहा है? Nearest in meaning. तो इंडिया अब तक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाया है. आंसर इज यूटिलाइज. Followed by ये है आपके पास. ऑपोजिट बताना है. एंटोनिम्स. दो नोवाइस इन आर्ची शोज ग्रेट प्रॉमिस. हालांकि वो नबी है. नोवाइस इज वन हु इज इनएक्सपीरियंस. तो आंसर इसका ऑपोजिट बताना है. वेटरन, जिसके पास एक्सपीरियंस. फॉलोड बाय फिर से आपके पास एंटोनिम्स आए. यू विल हैव टू लर्न टू ग्लॉस ओवर द ट्रिवियल मिस्टेक्स ऑफ द यंगस्टर्स. ये ट्रिवियल का मतलब होता है छोटी मोटी, उसका ये ऑपोजिट बताना है. इज इंपॉर्टेंट. लाइन प्रिंटर्स दैट प्रिंट लाइन. आई होप यू एंजॉय. ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो एक टाइम पे एक लाइन को ही प्रिंट करता है? सबसे पहले है लेजर प्रिंटर, फिर है इंकजेट या ड्रम या फिर चेन. अगर मैं बात करता हूं तो आंसर आप लोगों को यहाँ पे सामने दिख रहा है, दैट इज ड्रम प्रिंटर. बट मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल करना चाहूंगा चीजों को. लेजर प्रिंटर जो होता है वो काफी स्पीड अप प्रिंटर होता है, इस वजह से वो सिंगल लाइन नहीं करता है, आपके पास इकट्ठी मल्टीपल लाइन जो है प्रिंट कर देता है, क्योंकि इसकी स्पीड क्या होती है? हाई होती है. सिमिलर इंकजेट भी आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा प्रिंटर जिसके अंदर लिक्विड इंक हम लोग डालते हैं. साइबर कैफेज में जनरली ये आपको देखने को मिल जाता है. वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा फास्ट होता है. तो एक टाइम पे सिंगल लाइन नहीं करता है, मल्टीपल लाइन भी यहाँ पे प्रिंट कर देता है. और चेन प्रिंटर अगर आप लोग जनरली, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग पोस्ट ऑफिस गए हो जहाँ पे रजिस्ट्री वगैरह आप लोग करवाते हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंटर रखा हुआ होता है वो होता है आपके पास चेन प्रिंटर. तो वो भी आपने देखा है कितनी जल्दी फास्ट प्रिंटिंग आपके पास यूज कर रहा होता है. तो इस वजह से सिंगल लाइन नहीं, आपके पास मल्टीपल को कर देता है. तो आंसर क्या बनेगा? प्रिंटर आप लोग यहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है जी. चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ मेन मेमोरी. इनमें से कौन सा मेन मेमोरी में यूज किया जाता है? SRAM, DRAM, DRAM या DDR. तो आप लोग याद रखेंगे DRAM आप लोग जो है मेन मेमोरी की तरह यूज करते हैं. तो इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, मेमोरी मेन मेमोरी में कैसे यूज करते हैं. जैसे कभी भी सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग का जो प्रोसेस होता है और सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो लोड होके आते हैं वो कहाँ पे आते हैं? DRAM में आते हैं. ठीक है. जो लोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है वो किसमें आता है? DRAM में आता है. इस वजह से मेन मेमोरी की तरह यूज किया जाता है. तो होपफुली बात आपको क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेस इज कॉल्ड. मतलब मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे ये एक 50 GB या 100 GB की ड्राइव है ना. एक 100 GB की ड्राइव है. तो इस ड्राइव को आप लोग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. मान लीजिए 25 GB आपने यहाँ पे ले लिया और 25 GB आपने यहाँ पे ले लिया और ये सिंपल 50 GB आप लोगों ने रख लिया. तो ये जो पार्ट में डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है सेगमेंटेशन. सेगमेंटेशन का मतलब है छोटे छोटे पार्ट्स में किसी चीज को क्या करना? डिवाइड करना. तो डायरेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? सेगमेंटेशन. ठीक है. पेजिंग जो है, पेजिंग एक मेमोरी का प्रोसेस होता है. ठीक है. एक टेक्निक होती है पेजिंग जो है. बाइफरकेशन का मतलब होता है तोड़ना, बाइफरकेट करना, तोड़ना. बट एक्चुअल में जब मेमोरी की बात आती है तो हम लोग एक स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सेगमेंटेशन. होपफुली बात आपको क्लियर होगी. तो ये
आंसर बनना ही नहीं। डायरेक्टली आंसर इज बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इनपुट डिवाइस दैट यूज अ स्पेशल इंक दैट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग पिक्चर, मैप एंड ड्राइंग इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। तो जैसे आप लोग आज की डेट में ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं, ऑनलाइन किसी के पास पढ़ते हैं, या फिर आप लोगों ने ड्राइंग का काम जो है आप लोग करते हैं, तो वो जो काम है वो किसके थ्रू होता है? तो यहाँ पे देखिए ये पूछा है कि स्पेशल इंक आप लोग यूज करते हैं, तो डिजिटाइजर है, डिजिटल पेन है, लाइट पेन है, या फिर माइकर। आंसर क्या बनेगा? माइकर। सॉरी, आंसर क्या बनेगा? लाइट पेन। ठीक है, लाइट पेन के थ्रू वो वहां पे लिखा जाता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर आज की डेट में आप लोग करते हैं, तो जो भी है वो लाइट पेन के थ्रू किया जाता है। अब डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर आज की डेट में ऐसे गैजेट, ऐसे डिवाइसेस हैं जिनके थ्रू आप लोग कोई भी पेंटिंग बनाइए वो सिस्टम के ऊपर उसे देख सकते हैं, तो वो जो डिवाइस होता है उसे बोलते हैं डिजिटाइजर। इस वजह से वो इंक तो नहीं होती है। अगला है डिजिटल पेन। डिजिटल पेन एक तरीके का, इस तरीके का पेन, तो इंक का तो कोई है नहीं, लाइट पेन जो है इसका सही आंसर यहाँ पे ड्राइंग के लिए यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, a dash is a set of instruction which is prepared to perform a specific assignment if executed by a computer। तो वो क्या होता है? ब्राउजर, इंटरनेट या फिर कोड? एक्चुअल में वो होता है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि किसी पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि किसी पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। ब्राउज के थ्रू तो हम लोग इंटरनेट पे चेक करते हैं, इंटरनेट के थ्रू ब्राउजिंग होती है, और कोड तो लिखा जाता है। तो प्रोग्राम जो होता है, आपके पास सेट ऑफ कोड होता है जिसके थ्रू सारा का सारा काम किया जाता है। होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, एमएस वर्ड कम्स अंडर, एमएस वर्ड किसके अंदर आता है? तो एमएस वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ तो ये डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आता है, ग्राफिक, डेटाबेस या फिर न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक और डेटाबेस तो यहाँ पे कभी आंसर नहीं बनेगा, ग्राफिक में नहीं आएगा। तो डॉक्यूमेंट, अब आपको पता है, नाम से भी पता है कि एमएस वर्ड अगर लिखा है, अगर डॉक्यूमेंट लिखा है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके पास एमएस वर्ड को। याद होगा आपके पास डॉट डॉक इसकी एक्सटेंशन है, या फिर डॉट डॉक्स आप लोग करते हैं। ये है 2007 बेसिस, और ये है आपके पास, सॉरी 2003 बेसिस है, और ये है 2007 एंड ऑनवर्ड। ठीक है, तो ये याद आप लोगों को रखना है। ठीक है, तो डॉक का मतलब क्या होता है? एमएस वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन ईमेल एन एग्जांपल ऑफ ईमेल यूटिलिटी। ईमेल आप लोग जानते हैं, ईमेल से क्या है, आज की डेट में हमारी लाइफ बहुत ज्यादा इजी हो गई है। तो उसमें क्या है? वर्ड है, आउटलुक, एक्सप्लोरर या एक्सेल। एक्सेल तो अपने आप में सॉफ्टवेयर होता है, एक्सप्लोरर अलग चीज है, वर्ड अलग चीज है। आउटलुक जो है, एक आपके पास जीमेल है, जैसे आप लोगों के पास हॉटमेल होता है, जीमेल है, याहू मेल है, उसी तरीके से आउटलुक है, जो कि एमएस वर्ड का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने खुद का एक जीमेल बनाया है जिसका नाम क्या दिया गया है? आउटलुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Which of the following isn't part of this criteria? में से कौन सा पार्ट नहीं है? तो रो और कॉलम, रो नंबर तो होते हैं, कॉलम लेटर भी होते हैं, और सेल एड्रेस भी होता है, पर कॉलम नंबर नहीं, कॉलम नंबर नहीं होता, बिकॉज कॉलम में क्या होते हैं? लेटर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से होता है ना। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या बनेगा? लेटर होते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हेल्प अस टू सी द पैटर्न। इसकी थ्रू से पैटर्न देखते हैं, स्प्रेडशीट से, कैलकुलेशन से, चार्ट से या ग्राफिक से। तो एक चार्ट जो होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ इस तरीके से लाइन चार्ट आप लोगों के पास दिखाई देता है, या फिर आप लोगों के पास इस तरीके से चार्ट आता है, उसमें फर्स्ट ईयर में आपने इतनी इंक्रीमेंट करी थी, सेकंड ईयर में। तो चार्ट जो होते हैं हमें सारी चीजों के बारे में बताते हैं कि हमने प्रोग्रेस की है, हमने इंक्रीज गए हैं, डाउन गए हैं, वो क्या है? तो वो क्या है? चार्ट हेल्प अस टू सी द पैटर्न। हमें पैटर्न समझने में क्या करता है? हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, आरपानेट। आरपानेट क्या था? आरपानेट एक ऐसी एजेंसी है जिसके थ्रू इंटरनेट बनाया गया है। अगर आरपानेट था तभी आपके पास इंटरनेट चला, अगर आरपानेट नहीं था तो इंटरनेट नहीं बनता। तो आरपानेट एक
एजेंसी जिसने इंटरनेट बनाने का काम किया था, जिसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इसका क्या है फुल फॉर्म है, ठीक है। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क इसका क्या है फुल फॉर्म है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्यों कटा, ये है ऑटो है इसलिए कटा, ऑटोमेटिक है ऑथराइज्ड है, इस वजह से सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए। चलिए, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत